So Keynesian model in cut short or in a summarized form, जो कीन्स ने अपनी theory में बताया है that क्योंकि he considers his theory is based on a short period, so that is the reason he said कि in national income or output is the function of labor alone. Labor will be the only variable factor, right? So national income or output will depend upon this number of labor or level of employment, right? So income is the function of labor or employment, and it is a direct function of employment. मतलब if employment increases, output and national income also increases, right? So there is a direct relation between these two, that is level of employment and national income and output, right? And supply for labor and the equilibrium in the labor market is drawn with the help of the demand for labor and supply of labor. According to Keynes now, supply of labor is a direct function of monetary wage, right? जबकि classicals ने बोला that supply of labor is a function of real wage, demand for labor is also a function of real wage, whereas Keynesian says, or Keynes in his theory he said that supply of labor is a function of money wage, not real wage. There is a difference between real wage and money wage, and it is due to that labor, he assumed that labor has a money illusion, so labor does not get to know if prices increase. With the change in the prices, he do not realizes that his real wages have also changed, right? So that is where he said that supply of labor is a function of monetary wage. So it increases, supply increase of labor increases with the increase in the monetary wage, and it declines with the decline in the or decrease in the monetary wage, right? Then demand for labor according to him is a function of real wage, as classicals have also said the same thing, right? So demand for labor, अगेन यहाँ पे दोनों में इनवर्स संबंध होगा. अब यहाँ पे डायरेक्ट संबंध नहीं होगा, दोनों में ऑपोजिट संबंध होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा. मतलब रियल वेज घटेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अगर रियल वेज घटेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और रियल वेज बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर घटेगा, राइट? सो इट विल बी लाइक दैट, द रिलेशन विल बी लाइक दैट, राइट? सो इट इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज. तो जो प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर जो या फर्म जो लेबर की डिमांड कर रही है, वो लेबर की डिमांड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रियल वेज रेट क्या है, ठीक है? तो रियल वेज कम होगा तो वो ज्यादा डिमांड फॉर लेबर भी करना चाहेगा, राइट? Then labor market will be in equilibrium when demand for labor is equal to its supply. बताया मैंने, right? The equilibrium will be where there will be an equality between the demand for labor and supply of labor, right? So then the money market equilibrium happens with the rate of interest, right? So according to Keynes, unlike classicals ने बोला कि rate of interest एक रियल मार्केट में डिटरमिन होने वाला एक फिनोमिनन है, जो कि रियल वेरिएबल्स जैसे कि सेविंग और निवेश पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है. बट कीन्स ने बोला दिस विल डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. डिमांड फॉर मनी मीन्स द डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, फॉर कैश होल्डिंग, जो लोग अपने पास रखने चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और करेंसी, राइट? लिक्विड फॉर्म में अपने पास जो अपने एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को रखना चाहते हैं, दैट इज द डिमांड फॉर मनी. वो किस लिए रखना चाहते हैं? फॉर द थ्री पर्पसेस, नेमली ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव. क्योंकि प्रिकॉशनरी एंड जो ट्रांजैक्शन मोटिव है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम, ये ज्यादा होगा तो उसके लिए लिक्विडिटी भी इन दोनों पर्पसेस के लिए ज्यादा रहेगा, दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी इन दोनों पर्पसेस के लिए ज्यादा रहेगी, राइट? और अगर इनकम घटेगी तो इन दोनों पर्पसेस के लिए डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कम रहेगा. L2 जो यहाँ दिखाया है, दैट इज द डिमांड फॉर लिक्विडिटी फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव विच इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट डिपेंड्स अपॉन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दैट मीन्स आप अपनी फाइनेंशियल एसेट से वेल्थ कमाना चाहते हो, राइट? और प्रॉफिट गेन करना चाहते हो. सो दैट इज द पर्पस
स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी या स्पेक्युलेटिव लिक्विडिटी प्रेफरेंस उस लिए किया जाता है डिमांड फॉर मनी यहाँ पे, राइट, विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो कीन्स क्लासिकल्स की तरह ही कीन्स ने भी बिलीव किया कि इक्विलिब्रियम पे हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के परस्पर बराबर रहेंगे, राइट, बट ही सेड दैट investment is a function of rate of interest, which is inversely related, as classicals also have said the same thing. But according to Keynes, that saving is not a function of rate of interest, but it is determined by the level of income, right? So that means saving will increase with increase in income, and it will decline with decrease in the level of income, right? So there, the money market equilibrium will happen where there is equality between the money supply and the money demand, right? Money demand depends on these three motives, right? That is liquidity preference. Money supply is done by a monetary authority in an economy जो कि short period में more or less constant ही रहता है, all right. So this is the Keynesian theory, right? His model in a summarized manner, right? So in nutshell we can say that to increase employment according to Keynes during a short period, we have to decrease or lower the rate of interest. If rate of interest, unlike classical बोलते थे money wage cut, real wage, monetary wage cut कर दो, right? monetary wage cut करने से क्या होगा, जो डिमांड करने वाले हैं लेबर की, वो लोग और डिमांड करेंगे लेबर की, ठीक है, और उससे जो अनएम्प्लॉयड लेबर है उनको रोजगार मिल जाएगा। बट कीन्स का कहना है कि हम लोग मॉनेटरी वेज को कम करके ये चीज नहीं कर सकते, बिकॉज कीन्स के अकॉर्डिंग मॉनेटरी वेज कट के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो इनकम इफेक्ट होता है, एक तो कॉस्ट इफेक्ट होता है। क्लासिकल्स ने कॉस्ट इफेक्ट को कंसीडर किया, इनकम इफेक्ट को इग्नोर कर दिया। इनकम इफेक्ट का मतलब जब वेज कट होने से इनकम लोगों की कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम होने से उनकी डिमांड वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम हो जाएगी, जिससे कि प्राइसेस घटने लगेंगी और प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन घटने लगेंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू कीन्स, राइट। सो इसीलिए कीन्स के अकॉर्डिंग मॉनेटरी वेज को कम करने के बजाय वी शुड टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वी शुड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से। सो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन अचीव दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। देन दूसरा है कि शॉर्ट पीरियड में अगर लेबर की डिमांड बढ़ानी है तो वी शुड नॉट डू इट बाय लोअरिंग द मनी वेजेस, बल्कि हमें क्या करना है, रियल वेजेस को कम करना है। और वो रियल वेजेस कम कैसे होगा, वो रियल वेजेस कम होगा बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जनरल प्राइस लेवल को बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली जो मॉनेटरी वेज तो वैसी ही है, जितनी मिल रही थी उतनी है, बट रियल वेजेस के आधार पे जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो लेबर की जो वेज है, मॉनेटरी वेज will buy them less number of goods and services after that, right? So automatically that means उनके real wages कम हुई है, मॉनेटरी वेज उतनी ही है। so, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कीन्स ने अज्यूम किया अगेन कि लेबर को मनी इल्यूजन है, राइट। सो दिस इज हाउ कीन्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है, राइट।